کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بین الاقوامی فوٹوگرافی ڈے کے حوالے سے سری نگر میں آن لائن فوٹوگرافی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں دنیا کے مختلف حصوں سے 500 سے زائد لوگوں نے شرکت کر رہے ہیں اور فریمز 2020 لیٹ اس موو آن اور کورونا کے باوجود کام نہ رکے کے عنوان سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پیش ہے صنم تصدق کی یہ رپورٹ۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ان دنوں کوئی بڑی سوشل گیدرنگ نہیں ہو رہی ہے۔ سری نگر میں قیور آرٹ فاؤنڈیشن نے بین الاقوامی فوٹوگرافی ڈے کے حوالے سے آن لائن فوٹوگرافی نمائش کا انعقاد کیا ہے۔ نمائش میں نہ صرف کشمیر بلکہ ملک و بیرون ملک کے فوٹوگرافر حصہ لے رہے ہیں۔ 2G انٹرنیٹ سپیڈ کے باوجود یہ پہل قابل ستائش ہے۔ فاؤنڈیشن نے نئے فنکاروں کو معروف فنکاروں سے جوڑنے کا کام کیا ہے۔ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے ملاپ کریں دور دور، تو یہ ڈیجیٹل فارمیٹ ہمیں لگا کہ یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اب اس کے دو فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے، کیونکہ ایک اوریجنل کام کو اپنے سامنے دیکھنا اور اسکرین پہ دیکھنا، اس پہ کافی فرق ہے۔ لیکن چونکہ ہم حالاتوں سے گرے ہوئے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ویسے کریں، لیکن دنیا کی دوڑ میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا نو وی ول سیلیبریٹ دس ڈے، اور اسی ٹیگ لائن کے ساتھ کہ COVID-19 ہیز پٹ دا ہول یونیورس آن ہالٹ بٹ دا لائف سیز لیٹس موو۔ فریمز 2020 لیٹ اس موو آن نام سے اس شو کا انعقاد کیا گیا ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے انہیں اس طرح کا ریسپانس ملنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ مختلف زمروں کے تحت منعقدہ شو میں کئی انٹریز ہوئی ہیں۔ 3 کیٹیگریز ہیں، ایک تو انوائٹڈ ہے، اس میں مکس ہیں، کچھ نیشنل انٹرنیشنل اور یہاں کے لوکل آرٹسٹ۔ سو دین وی ہیو اندر کیٹیگری دیٹ از پروفیشنل کیٹیگری، جنہوں نے انٹریز بھیجی تھی اور اس میں ایک باضابطہ سلیکشن ہو گئی تھی۔ تیسری کیٹیگری ہے ایمیچورز کی، جس میں ینگ اور جو ابھی لرن کر رہے ہیں یا کسی کی ہابی ہے تو وہ ایک کلاس ہے۔ تو نیئرلی 170 پلس 170 سے زیادہ ہمارے پاس اس وقت سلیکٹڈ کیٹیگری۔ اس شو کی ای اوپننگ قیور فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو پاندریٹھن سری نگر میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے بالی ووڈ اداکار میر سرور نے کی۔ پدم شری ویژول آرٹسٹ راجندر تکو مہمان ذی وقار کے طور موجود رہے۔ میر سرور کا کہنا تھا کہ کشمیر کے لوگ اپنے آرٹسٹ کی قدر نہیں کرتے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوشش سے اب یہاں کے فنکاروں کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اپنے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے، اور آئی ریممبر نوشاد صاحب اینڈ آئی واز روم میٹس ان دہلی۔ غیور صاحب جب وہاں پہ دلی آئے تھے پہلی بار تو ہمارے لیے ایک نیبر تھے، دوست کے فادر تھے، لیکن جب ہم کالج گئے ساتھ میں، کسی ایگزیبیشن میں ساتھ میں گئے، آل دا لیڈنگ فوٹوگرافرز آرٹسٹس دے یوزڈ ٹو اسٹینڈ، آشیرواد لیتے تھے ان سے، تو وہاں پہ سمجھ میں آتا تھا کہ یار ہمارے ساتھ میں کتنے بڑے سیلیبریٹیز ہیں جن کی ہم نارملی قدر نہیں کرتے۔ تو اٹس اے ونڈرفل انیشیٹو، آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی ایم پارٹ آف دس انیشیٹو، اور ہم ہمیشہ ایسے انیشیٹیوز کے ساتھ رہے ہیں، آگے بھی رہیں گے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کشمیر میں ہنرمند نوجوانوں کی کمی نہیں ہے۔ یہاں کے فوٹوگرافرز نے بھی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ انہوں نے اس آن لائن شو کو کافی کارآمد قرار دیا ہے۔ انگیج ہو گئے اسٹوڈنٹس، اور جو باہر امیچور آرٹسٹ بھی تھے وہ بھی انگیج ہو گئے، تو ان کے لیے یہ انگیجمنٹ واز لائف سیونگ، اٹ واز آکسیجن آلموسٹ فار دیم ان دس کائنڈ آف اے سچویشن۔ تو ان کو کافی فائدہ ہوا۔ تو کتنا سیکھنے کو ملا، آئی ول ناٹ پٹ اٹ اونلی ٹو دیٹ لیول۔ میرے لیے یہ تھا کہ یہاں کے جو آرٹسٹ ہیں یا فوٹوگرافرس ہیں، انہوں نے آلریڈی اپنا نام دنیا میں کافی کمایا ہوا ہے۔ پچھلے 1 سال سے جو کنڈیشن یہاں رہی ہے اس میں اتنا اچھا کام کرنا، آئی تھنک اٹس این انسپائریشن فار ادر پیپل، ادر ینگ آرٹسٹ فرام ادر ریجنس who have a less difficulty in life than we have۔ اس شو کی کافی ستائش ہو رہی ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ شو 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ لیٹس موو آن، یعنی کہ جو ابھی پیڈیمک ہے اس کی وجہ سے رکنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کی یہ کوشش اتنی کامیاب رہی کہ اس ایگزیبیشن میں نہ صرف کشمیر کی بلکہ ملک کے ساتھ ساتھ باقی ممالک سے بھی پارٹیسپینٹس آئے، جنہوں نے اپنے ورک کو یہاں پہ پریزنٹ کیا۔
जहांगीर अजीज के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप और रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। वज़र फिल्मी नगमों को शामिल नहीं किया जाएगा, कश्मीरी फोक को तरजीह दी जाएगी। कश्मीर के सितारे का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज़ को बुलंद परवाज़ दीजिए। अपने वीडियो के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। तबले और नुट की थाप से जुड़ेंगे रबाब और जल तरंग, सारंगी और सितार के साथ मिलेगा संतूर का रंग, और झूम के गाएंगे आवाज के मलंग। कश्मीर में साजो आवाज से निकलेंगे सुकून के धारे, जब झिल मिलाएंगे कश्मीर के सितारे। अगर आप में है साजो आवाज का हुनर तो अभी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में और जमाने को दिखा दें कि आप हैं कश्मीर के सितारे। जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। कोरोना वायरस के पेश नज़र जहां मुहर्रम के जलसे व जुलूस मुतासर हो रहे हैं और बड़े जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई है, ताहम इस तनाजुर में पटन के मालमूह में अज़ादारों ने ग्राउंड में शामियाना लगाकर इसके अंदर कोविड-19 से मुतल्लक SOPs के साथ एक नई पहल शुरू की। अज़ादार मरसिया करने के दौरान मास्क, समाजी फासला और सैनिटाइज़र लाजमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मालूम के औकाफ कमेटी किसी को भी मास्क के बगैर मजलिस के अंदर जाने की इजाज़त नहीं देती है। लोगों के बीच में जो फासला हो वो मौजून हो, उसके लिए उनको जगह हो, इसके लिए हमने एक बहुत वसी जगह का इंतखाब किया है जहाँ पर हमने घेर लिया है, साहिबान इसमें तैनात किया है और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से SOPs जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और मराजे आज़ाम की तरफ से जो अहकामात सादिर हुए हैं उन पर अमल दरामद करते हुए एक साई की है हमने, ताकि बाकी जो आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोविड-19 की वजह से मुअत्तल कर रहे हैं, मुअख्खर कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने एक कोशिश की है ताकि वो भी देखें, चंद एक इक़दामात पर अमल करते हुए हम ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल आसान तरीके पर अंजाम दे सकते हैं। इस साल कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ SOPs को फॉलो करने की हिदायत दी है, तो उन SOPs को फॉलो करते हुए हमने मजलिस का इनेकाद किया। जो यहाँ की हमें बॉडी है, इसकी औकाफ बॉडी, उनने ये तय किया, ये फ़ैसला लिया है कि कोई भी मुहिब, कोई भी अज़ादार मजलिस में बगैर मास्क ना आए। तो उसके अलावा सोशल डिस्टेंस उनने रखी है, उनने निशान लगाए हैं, जैसा कि आपने खुद मुशाहिदा किया है, 6-6 फीट दोनों तरफ से रखा है डिस्टेंस में, और उसके अलावा सैनिटाइज भी किया जा रहा है इस मकाम को और इंशाल्लाह हर दिन इसको सैनिटाइज किया जाएगा। करगिल में मुहर्रमुल हराम के मौके पर याद इमाम हुसैन में मातमी मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। करगिल के डिवीज़न और ब्लॉक्स में हज़रत इमाम हुसैन को बेहतरीन खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। गुज़श्ता साल इस्लामी स्कूल कॉम्प्लेक्स और हुसैनी पार्क में बड़ी मजालिस का एहतमाम किया गया था, लेकिन इस मरतबा कोरोना वबा के चलते गाइडलाइंस के मुताबिक छोटी मजालिस का इनकाद किया जा रहा है। करगिल के DM, SSP और तहसीलदार ने इस्लामिया स्कूल और IKMT का दौरा किया और करगिल के अवाम से ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। अभी तक जो है वो जो अरेंजमेंट था वो काफ़ी अच्छा है, तो मेरी पब्लिक से यही अपील है कि इसी जोश और जज्बे के साथ हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हाइजीन लेवल को मेंटेन करना है, या मास्क पहनना है, या ज़्यादा भीड़ नहीं करना है, या ज़्यादा बुज़ुर्गों को बाहर नहीं आने देना है, बच्चों को इसमें शामिल नहीं होने देना है, खासकर औरतों को, तो इस तरीके से जो है हम इस चीज़ को मेंटेन करेंगे तो आने वाले टाइम में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत स्मूथ रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और गांदरबल से साबिक मेंबर असम्बली शेख अशफाक जब्बार ने ज़िला गांदरबल के शिया आबादी वाले इलाकों का दौरा किया, जिनमें डिब, शलहार और मुताद दीगर मुल्हिका इलाके शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से तमाम इंतज़ामात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया ताकि लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़े।
इसमें रिवायत होते हैं, थोड़ी बहुत कमी पेशी है, तो मैं गुजारिश करूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हम इनको यहाँ से अपनी तरफ से उनको यहाँ पे लोगों की डिमांड्स है तो वो जल्द जल्द इस मुहर्रम हराम के चलते ये। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघुलांगर ने तराल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि पूरे सब ज़िला में तरक्याती कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। बस स्टैंड तराल में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी तामीर किया जाएगा। इसमें तराल के मुतासरा दुकानदारों को भी जगह दी जाएगी। सप्लाई स्कीम्स का कोई इशू हो, प्ले फील्ड्स का इशू हो, यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल की वॉलिंग के लिए भी टाटसरा में एक बड़ी लॉन्ग पेंडिंग रिक्वायरमेंट है। साथ ही में कुछ सड़कें भी जो खस्ता हाल हैं उसके बारे में भी बताया गया है। उसके लिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी तराल बस अड्डे में उसका लैंड एडीसी तराल ने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके लिए प्रपोजल भी हमने महकमे को बता दिया है बनाने के लिए। तो जैसे ही ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सैंक्शन होता है और बनके मुकम्मल होता है तो वहाँ पर जो अफेक्टेड शॉपकीपर्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन प्रायोरिटी पर की जाएगी। फौज ने हमेशा मफाद आम्मा में इक़दामात उठाए हैं। शोपियां में अमन और तरक्की के लिए फौज हमेशा पेश रहती है। 44 राष्ट्रीय राइफल्स ने हेलीपैड में बैठक के लिए टेबल्स अतिया किए, जहां सैकड़ों नौजवान और बुजुर्ग शहरी अपना वक्त गुजारते हैं। हेलीपैड एक खूबसूरत और आरामदेह और पुरसुकून मकाम है, जहां से नाला रामबियारा और पहाड़ों का मुकम्मल नज़ारा किया जा सकता है। यहाँ बैठने का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं था। फौज के एक अफसर ने हेलीपैड पर बैठने के लिए टेबलों की ज़रूरत को महसूस किया और फौरी तौर पर हेलीपैड के लिए कई सिटिंग टेबल्स अतिया किए। बेंच ऑलरेडी यहाँ पे 2-4 हैं जो फौज ने रखे हैं, आरआर ने। उनका हम बहुत थैंक्स करते हैं दिल से कि हम उनसे अपील करते हैं कि और बेंच होने चाहिए यहाँ पे और लाइट्स होने चाहिए। सीनियर बीजेपी लीडर नज़ीर अहमद रैना ने रुबीना शहजाद और ज़हूर अहमद गनाई को पार्टी से निकालने पर ज़िला सदर बराए गांदरबल की नुक्ताचीनी की है। रैना का कहना है कि इस तरह का फैसला करने का इख्तियार सिर्फ पार्टी की आला क़यादत और यूटी के सदर रविंदर रैना को है। बहुत गलत बात है, मैं इसको कंडम करता हूँ। हमारा काम है, हमारे संगठन का काम है कि पार्टी को बढ़ाना, न कि पार्टी को घटाना। संगठन में यही जिम्मेदारी होती है, खासतौर पर जिलाध्यक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी अच्छी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसको खास विशेष तौर पर यह कहा जाता है कि वो पार्टी को, संगठन को बढ़ाएं। लेकिन अगर किसी को बाहर निकालना होगा, कोई गलती करता है, उसको हाईकमांड को लिखना चाहिए। हाईकमांड को ताकत है। देहात की शिकायत को दूर करने के लिए गांव के वर्जन 1 और वर्जन 2 को वापस कौमी सतह का बनाया गया है, लेकिन गतिपुरा शोपियां के हालात ये बताते हैं कि बैक टू विलेज प्रोग्राम एक कदीम पेशकश थी, क्योंकि सड़क को तरक्याती कामों की फहरिस्त में रखा गया है, जो होना चाहिए था। लेकिन करीब 1 साल गुजर चुका है और सड़क अभी भी काबिल रहम हालत में है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम से मुतादिद बार राब्ता किया, लेकिन हुकाम ने खोखले वादे किए। इस रोड पे 1 इंच का मैगडम डाला गया 2005 में। 2005 से लेकर आज तक इस सड़क की हालत क्या हुई है वो खुद कई बार डीसी साहब ने देखी है, कई बार यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई है कई मसलों के लिए, लेकिन रोडों की हालत उन्होंने खुद देखी है कि रोड कैसा है, क्या हालत है रोडों की, कितने गड्ढे हो गए हैं रोड की, कितनी धूल है इस रोड पे चलती हैं। धूल की वजह से बच्चे बीमार होते हैं, बुज़ुर्ग बीमार होते हैं, कितनी परेशानी हो रही है इस रोड पे। कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कई बार हमने महकमे के आला हुकाम तक हम जा चुके हैं कि रोडों का मामला ये है, लेकिन कोई भी किसी भी तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। डोडा के दही इलाके प्रेमनगर में 1966 में तामीर किया गया ब्रिज खस्ता हाली का शिकार है। जब से ब्रिज तामीर किया गया है तब से लेकर अब तक ना ही ब्रिज की मरम्मत की गई और ना ही इसका ख्याल रखा गया। लोगों के मुताबिक ये ब्रिज अब कमज़ोर हो चुका है और अब लोगों के लिए एक ख़तरा बन चुका है। PWD के मुताबिक ब्रिज की मरम्मत के लिए 26 लाख रुपए की तजवीज़ रवाना की गई है और रकम मिलते ही ब्रिज का काम शुरू किया जाएगा। ये 1966 में ये पुल जो है बनाया गया, उसके बाद ये लकड़ी का है, उसके बाद ना ही प्रशासन ने इस पर तवज्जो दी और कम से कम यहाँ से लोग कम से कम 7, 8, 10 पंचायतें जो हैं, पंचायतों के लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं। और ये एक मेन कनेक्टिविटी थी चिनाब रिवर के ऊपर,
जहाँ से 7, 8, 10 पंचायतों को कनेक्ट किया जाता था और यहाँ से हर चीज़ जो है ट्रांसपोर्ट होती थी। और आप देख ही रहे हैं इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर कोई बंदा जो है लोड लेके जाएगा यहाँ से, उसका पैर कब फिसल जाए और उसमें कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। बड़े लोगों को भी जो है यहाँ पे पार करने में दिक्कत होती है, इंतज़ार करना पड़ता है। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये। और अलाइनमेंट भी ख़त्म हो चुकी है जो है, अभी ये ब्रिज जो है कभी भी टूट भी सकता है अचानक, तो लिहाजा इसको नए सिरे से बनाया जाए, लोहे का ब्रिज बनाया जाए। है वो काफ़ी डैमेज हो चुकी है और इसमें हमने एक टेम्परेरी रेस्टोरेशन का भी रिसेंटली एक एस्टिमेट बना के गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। ये हमने टेम्परेरी रेस्टोरेशन का दिया अभी इसमें, जो फ्लोरिंग वगैरह इसकी डैमेज है उसको रिपेयर करने के लिए। जो परमानेंट इसका सोल्यूशन है वो हम इसको सोच रहे हैं कि स्टील ब्रिज इसको बनाया जाए, जो हमारे कहीं फुटपाथ ब्रिज बने हुए हैं जिसके रिप्लेसमेंट यहाँ हमारे सुगाड़ी ब्रिज एक है, वो अगर कंप्लीट हो गया उसकी जो झूला ब्रिज है उसको हम शिफ्ट यहाँ कर सकते हैं, या ठाठरी में भी एक ब्रिज बना हुआ है उसको भी शिफ्टिंग का प्रोग्राम हम सोच रहे हैं, वो परमानेंट सोल्यूशन इसका होगा। गवर्नमेंट को ये एस्टिमेट चला गया, हमें जो ही सैंक्शन आ जाती है इसकी तो हम इमीडिएटली इसका टेंडर फ्लोट करके काम शुरू कर देंगे। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।